سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ خالق کائنات سورہ فتح آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ لفظی ترجمہ، لیسا نہ ہے، علی پر، الاعمی اندھے، حرج کوئی گناہ، و اور، لا نہ ہے، علی پر، اعرج لنگرے، حرج کوئی گناہ، و اور، لا نہ ہے، علی پر، مریض بیمار، حرج کوئی گناہ، و اور، من جو، یطعی اطاعت کرے گا، اللہ اللہ، و اور، رسولہ اس کے رسول کی، یدخلہ اللہ اسے داخل کرے گا، جنات ان جنتوں میں، تجری بہ رہی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، و اور، من جو، یتولی منہ پھیرے گا، یعذبہ اللہ اسے عذاب دے گا، عذاباً عذاب، علیم دردناک۔ یہ لفظی ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے واضح فرمایا، جہاد میں شریک نہ ہونے پر اندھے، لنگڑے اور مریض کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ برادران اسلام، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس کے میں نے 3 حصے کیے ہیں، اور ہر حصے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ اس کا پہلا حصہ ہے جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے، جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے، اور جو بیمار ہے، اگر وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتا تو اس کے پاس عذر معقول ہے، اس عذر کی بنا پر وہ شریک نہیں ہو رہا تو وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ پچھلی آیات کے اندر خالق کائنات نے جو صلح حدیبیہ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے، خالق کائنات نے ان کی گرفت فرمائی اور ان پر ملامت فرمائی، سرزنش فرمائی۔ تو اب مدینہ طیبہ کے اندر کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس عذر تھا، جس عذر کی بنا پر وہ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جو منافق تھے۔ منافق کی تو سرزنش فرمائی اور ملامت فرمائی۔ گزشتہ دروس قرآن میں نے آپ حضرات کے سامنے اسے واضح کر دیا تھا۔ اب جو سچے مسلمان تھے، بعض جن کے پاس عذر تھا، وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ہم جان بوجھ کر صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمارے پاس عذر تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت
हज़रत जिब्रील को भेजा और ये इरशाद फरमाया कि प्यारे हबीब की बारगाह में ये कह दो कि ये माजूर हैं और माजूर उज़र की बिना पर जिहाद में अगर शरीक ना हो तो काबिल मलामत नहीं होते, इनकी कोई सरजनिश और गिरफ्त नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद खालिक कायनात ने इस आयत करीमा में दूसरा हिस्सा वमई युतिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहती अल अनहार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें रवा और जारी होंगी। यहाँ इस आयत करीमा के जुज़ में ये बतलाया जा रहा है कि जिन सहाबा किराम के पास उज़र था और वो उस उज़र की बिना पर सुलह हुदैबिया और बैअत रिज़वान में शरीक नहीं हुए, फरमाया वो भी अल्लाह के इताअत गुज़ार हैं। इसका मतलब ये हुआ मुनाफिक हीले बाने कर रहे थे जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन बाद सच्चे मुसलमान भी थे जिनके पास उज़र था, उज़र की बिना पर वो शरीक नहीं हुए। मैं इसकी मिसाल पेश करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब फ़र्द नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्द नमाज के अंदर क़याम का करना ये फ़र्द है। अगर आपने क़याम ना किया तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास उज़र है, यानी आप खड़े नहीं रह सकते, तो अब इस्लाम ने आपके लिए रियायत रखी, जनाब आप बैठकर नमाज पढ़ लें। लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया था, आपके पास इसका उज़र था, उज़र की बिना पर किया। जब आपने उज़र की बिना पर किया तो खालिक कायनात के बारगाह में ये ऐसा ही लिखा जाएगा जैसे आपने क़याम करके नमाज पढ़ी। ये निज़ाम है। मैं एक और मिसाल आपके सामने हदीस मुबारका की रोशनी में पेश करना चाहता हूँ। हदीस मुबारका में है, अगर कोई शख्स हालत सेहत में अच्छे अमल करता था, अब बीमार हो गया, मर्ज की बिना पर वो अच्छे अमल नहीं कर पाता, या जवानी में अच्छे अमल करता था लेकिन बुढ़ापे में बुढ़ापे की बिना पर वो अच्छे अमल उस कदर नहीं कर सकता, तो याद रखिएगा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो हालत सेहत में अमल करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालत मर्द में भी उसका अजर अता फरमाएगा, और जो जवानी में करता था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बुढ़ापे में भी उसका अजर अता फरमाएगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, वो बात यह है कि जब बंदा करता था अल्हम्दुलिल्लाह, और जब नहीं कर सकता था तो उस वक्त उसके दिल में एक दर्द हो, एक एहसास हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक वक्त ऐसा आया कि मैं नमाज पढ़ता था हालत क़याम में, लेकिन अब खड़े होने में तकलीफ़ हो रही है, मैं बैठकर नमाज पढ़ता हूँ, तो उस वक्त रब की बारगाह में बार बार अर्ज़ करता रहे, ए मौला, ए परवरदिगार, मैं खड़े होकर नमाज पढ़ता था लेकिन अब मैं पढ़ नहीं सकता, मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, जानबूझ के नहीं करता। जब ये एहसास होगा और ये दर्द होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब उसे क़याम का सवाब देगा और इसे अजर अता फरमाएगा। यानी अगर बीमार है तो सेहत का सवाब देगा, और बुढ़ापा आ गया तो जवानी का अजर सवाब उसे अता फरमाएगा। तो अब सहाबा किराम वो सहाबा जिनके पास उज़र था, सुलह हुदैबिया में और बैअत रिज़वान में शरीक ना हो सके, उनके पास उज़र था। कुरान ने इस बात को जिक्र कर दिया, ठीक है तुम्हारा उज़र मकबूल है, इसीलिए तो हमने आयत करीमा को नाजिल फरमाया। अब सहाबा किराम के अपने जज्बात थे, मैं मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा, मैं सहाबा किराम की बात कर रहा हूँ जो उज़र की बिना पर बैअत रिज़वान में शरीक नहीं हो सके। उनके अपने जज्बात थे, और वो जज्बात क्या थे? कहते हैं ठीक है हम जिहाद में तो शरीक ना हो सके, लेकिन वो लोग जो जिहाद में शरीक हुए हैं हम उनके घर बार की हिफाजत तो करें, उनके घर वालों की हिफाजत करें, उनको सपोर्ट करें। अब ये जो अंदाज था ना, रब को बड़ा पसंद आया। रब्बुल जलाल ने बावजूद इसके कि ये सुलह हुदैबिया में शरीक नहीं हुए, बावजूद इसके ये बैअत रिज़वान में शरीक नहीं हुए, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वमई युतिल्लाह व रसूला, ये शरीक नहीं हुए
لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، جس کا مطلب یہ ہے عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی ہے جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ حالت صحت میں جو نیک عمل کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا، وہ عمل نہیں کر سکتا، اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ حالت صحت میں عبادت کرتا تھا، ویسا ہی اللہ لکھ دیتا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے اس بات کو واضح کیا کہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، اب اللہ رب العزت انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا، اور ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ اب اس آیت میں جو آیت نمبر 17 ہے اور اس کا آخری جز، چونکہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ آیت نمبر 17 کے میں نے 3 جز کر دیے، پہلا جز کلیئر ہو گیا، دوسرا جز بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آئیں اسی آیت کا تیسرا جز۔ خالق کائنات نے اب منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّ، سن لو، جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا اور پیٹ دکھا دے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 17 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آئیں سورہ فتح آیت نمبر 18۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس کا لفظی ترجمہ، لقد، یقیناً، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، لقد، یقیناً، رضیہ، راضی ہو گیا، اللہ، ان سے، المؤمنین، ایمان والو، اذ، جب، یبایعونک، اے پیارے، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، تحت، نیچے، شجرہ، درخت کے، فعلم، تو جانا، ما، جو، فی، میں، قلوبہم، ان کے دلوں، فانزل، تو اتارا، السکینہ، اطمینان، تسکین، علیہم، ان پر، اور، اصابہم، انہیں انعام دیا، فتحً قریبا، جلد آنے والی فتح کا۔ تفسیری ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً، بلا شبہ، اللہ تعالی ایمان والوں سے راضی ہو گیا اس وقت جب وہ درخت کے نیچے، اے پیارے، آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ برادران اسلام، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ اب اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بھی میں نے 3 حصے کیے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یعنی جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے اور بیعت رضوان میں 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام موجود تھے۔ خالق کائنات ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے، اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو، اے پیارے، آپ کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ بالکل کلیئر ہے کہ بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے، ان کی عظمتوں کے ڈنکے فقط نبی نے بیان نہیں کیے، میرے رب نے بھی بیان کر دیا۔ بڑے عظیم ہیں، جن میں سیدنا صدیق ابو بکر بھی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، اور حضرت سیدنا علی شیر خدا بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد
खालिक कायनात ने इसी आयत के दूसरे जुज में इरशाद फरमाया, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो बैअत कर रहे थे ना सहाबा, इनके दिलों पर क्या गुजर रही थी अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उनसे आगाह है। इसलिए कि इब्तिदान बाद सहाबा के दिलों में ये बात आई, लेकिन ये इब्तिदाअन आई कि इतनी बड़ी ताकत से हम लड़ेंगे, हम 1400 और बेसरो सामा, हमारे पास कोई असला नहीं है, और हमें लड़ना किससे है? कुफार मक्का से। कुफार मक्का तादाद के एतबार से भी डबल तिबल चौबल, असले के एतबार से भरपूर तैयारी, माइन भी इनका बना हुआ। साहबा किराम का माइन लड़ने का नहीं था, बल्कि साहबा किराम का माइन था काबा शरीफ को अपनी आंखों से देखें और गिरदे काबा तवाफ करें। यह साहबा किराम की सोच थी, साहबा किराम का माइन था और यह फिक्र थी। अब उस वक्त इब्तिदान बाद साहबा के दिलों में बात आई, हम लड़ सकेंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हमने क्या किया? फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम, हमने इनके दिलों पर तस्कीन को नाज़िल कर दिया। यानी अब इनके दिलों में ये बात नहीं है हम कैसे लड़ेंगे, बल्कि अब इनके दिलों में ये बात है कि अब हम इलाए कलिमतुल हक़, हज़रत सैयदना उस्मान गनी के कत्ल की खातिर मरेंगे या मारे जाएंगे। और यहाँ ये बात ज़हन में रखिएगा, जो सतही नज़र रखता है और अल्लाह की ज़ात पर जो तवक्कुल करना चाहिए उस अंदाज में नहीं करता, अगर उस फिक्र को देखा जाए तो याद रखिएगा वो फिक्र ये कहेगी ये खुदकुशी है, अपने आप को मारना है। लेकिन जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं और अल्लाह उनके दिलों को मुंतखब कर लेता है, उनकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। अब वो क्या कहते हैं, ठीक है 1400 है ना, ये हज़ारों में है, हम मर जाएंगे या मारेंगे, लेकिन इस्लाम के कलमे को बुलंद ज़रूर करेंगे। ये सोच बन गई। और ये सोच कैसे आई? मेरे रब ने इनके दिलों पर तस्कीन को नादिल फरमा दिया। और याद रखिएगा कभी कभार होता है हम पर भी कोई हैबत तारी हो जाती है, और फिर उस हैबत तारी होने के बाद अचानक दिल में पलटाव आ जाता है, बड़े निडर बन जाते हैं। बात यह है पहले घबराहट थी, अब बहादुर बन गए। ये डाला किसने? ये मेरे रब ने डाला, ये रब की अता है। तो ये बड़ा रब का करम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों से घबराहट को दूर कर दे, खौफ को ख़त्म कर दे और तस्कीन और इत्मीनान को कल्ब पर और दिल पर उतार दे। याद रखिएगा जब कल्ब मुतमईन होगा बंदा आगे बढ़ेगा, अगर कल्ब मुतमईन नहीं तो फिर बंदा आगे नहीं बढ़ता, फिर पीछे जाता रहता है, खिसकता रहता है। और फिर इसके बाद सूरह फतह आयत नंबर 18 के आखिरी कलिमात काबिल तवज्जो, रब ने फरमाया व असाबहुम फतहन करीबा। रब ने क्लियर कर दिया, ए मेरे नबी के सहाबा, अन करीब हम तुम्हें एक इनाम देंगे। सहाबा के बारे में, और ये बात आखिरत की नहीं हो रही, आखिरत में तो जो मिलेगा सही है, बात अब दुनिया की हो रही है। अन करीब हम तुम्हें इनाम देंगे, और वो इनाम क्या है? फतह की सूरत में। वह यही जब बैअत रिज़वान हो गई, 6 माह गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने खैबर को फतह कर लिया। खैबर फतह हुआ, जिसकी वजाहत में कर चुका कि खैबर को फतह करने में ढेर सारा माल हाथ लगेगा, ढेर सारा। और एक और बात मैं आपके जहनों में बिठाना चाहता हूँ, वह बात यह है कि पिछली उम्मतों में माल गनीमत हलाल नहीं था। यानी जब मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान मार्का हो ना, जो माल हाथ आया वो हलाल नहीं था। आप कहेंगे उस माल को क्या किया जाता था? उस माल को मैदान में रखा जाता, इसके बाद एक आग आती और उस माल को जला देती। ये बनी इसराइल में होता था।
माल गनीमत पिछली उम्मतों में हलाल नहीं था, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया। अच्छा, अब माल गनीमत जब आएगा, इसके टोटल हिस्से कितने बनते हैं? 5। इसको ध्यान में रखिएगा। एक हिस्सा बैतुल माल में जाएगा, और वो जो बैतुल माल में एक हिस्सा जाएगा, उससे किसकी जरूरत पूरी होगी? फुकरा की, मोहताजों की। और वो जो एक हिस्सा है उसमें ही नबी के खानदान का हक होगा, यानी जो सादात किराम है ना, उनकी खिदमत भी उस एक हिस्से से होगी, क्योंकि ज़कात का माल तो नहीं दे सकते ना, ज़कात तो अदा ही नहीं होगी, माल का मेल है। तो अब अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि इसके 5 हिस्से, एक हिस्सा बैतुल माल में जाएगा। अब वो एक हिस्सा जो बैतुल माल में जाएगा वो फुकरा में भी तकसीम होगा, गुरबा में भी तकसीम होगा, और वो सादात जो मुस्तहिक हैं, जिनके घर नहीं चल पाते, हुकूमत वक्त और रियासत इस्लाम का ये फ़र्द मनसबी है कि वो सादात और आले रसूल के घर को इस माल से चलाए। अब 5 हिस्से, एक हिस्सा तो बैतुल माल में गया, बाकी कितने बच गए? 4 हिस्से बच गए। 4 हिस्से किसे मिलेंगे? 4 हिस्से मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम होंगे। यानी कितना फ़ायदा है दुनिया के अंदर। ये पिछली उम्मत के लिए नहीं था, ये इस उम्मत के लिए है, नबी के सदके। जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि पिछली उम्मत में इबादत खाने खास है, बस वहीं इबादत होगी, आप इसके अलावा इबादत नहीं कर सकते। जैसे कभी आप घर पे नमाज पढ़ते हैं ना, पिछली उम्मत में नहीं था ऐसा। इबादत खाने में जाना पड़ेगा और वहीं जाकर इबादत करनी, बस। घर में करोगे अदा नहीं होगा, दुकान में करोगे अदा नहीं होगा, गोदाम में करोगे अदा नहीं होगा, अपने इबादत खाने में जाना होगा। हमारे यहाँ क्या है कि जनाब मस्जिद है, बाजमात नमाज पढ़े, वाजिब है, लेकिन अगर किसी वजह से आप मस्जिद नहीं पहुँच सकते तो घर में पढ़ लो। मस्जिद किसी उज़र की बिना पर आप ना पहुँच सके तो दुकान में पढ़ लो। अगर किसी उज़र की बिना पर आप मस्जिद ना पहुँच सके तो आप गोदाम में पढ़ लें। लेकिन पिछली उम्मत में ऐसा नहीं था, ना आप दुकान में इबादत कर सकते, ना गोदाम में कर सकते, ना घर में कर सकते, बस इनके जो गिरजा घर थे वहीं जाकर इबादत करनी पड़ेगी। लेकिन इस उम्मत के साथ ये करम हो गया कि जनाब आप मस्जिद में भी इबादत करें, घर में भी करें, दुकान में भी करें, गोदाम में भी करें, हर जगह बरकतें ही बरकतें हैं। ये निज़ाम है। तो माले गनीमत पिछली उम्मत के लिए हलाल नहीं था, लेकिन इस उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया, और उसमें एक हिस्सा बैतुल माल में जाएगा, बाकी 4 हिस्से ये मुजाहिदीन को मिलेंगे। मैं सिर्फ एक मिसाल देके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर माले गनीमत में करोड़ रुपया आया, तो 5वां हिस्सा हुआ 20 लाख। 20 लाख जाएगा बैतुल माल में, रियासत के खजाने में। लेकिन अब कितने बच गए? 80 लाख। 80 लाख मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम होंगे। ये मिसाल मैंने पेश की ताकि मसला मजीद वाज़ेह हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशारत दी, व असाबहुम फतहन करीबा, अन करीब खैबर फतह होगा, और फिर 6 माह के अंदर खैबर फतह हो गया, जिसमें कसीर अमवाल हासिल हुए। सूरह फतह आयत नंबर 19। खालिक कायनात ने इसके अंदर इरशाद फरमाया, व मगानिमा कसीरतैन यख़ुज़ूनहा व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लफ्ज़ी तर्जुमा स्क्रीन पर मुलाहिदा फरमाएं। व और मगानिम गनीमतें, कसीरतन बहुत सी, यख़ुज़ूनहा जिनको वो हासिल करेंगे, व और काना है अल्लाह अल्लाह अजीज़न इज़्ज़त वाला, हकीमन हिकमत वाला। तफसीरी तर्जुमा, और बहुत सी नेमतें भी जिनको वो हासिल करेंगे, और अल्लाह ताला इज़्ज़त व हिकमत वाला है। ज़रा तवज्जो रखें इस मकाम पर।
आयत करीमा के अल्फाज आप नोट करें, मेरा रब क्या इरशाद फरमाता है, व मगानिम कसीरा या खुदूनहा, यानी रब बताना चाह रहा है कि अगली जो फतह होगी ना उसमें तुम्हें मुशक्कत नहीं उठानी, बड़ी आसानी है। 70,000 तकरीबन यहूदी थे खैबर में, और मुसलमान जो लड़ने गए थे कितने थे? 1400। आप जरा गौर करें तादाद में कितना फर्क है, कहाँ 70,000 कहाँ 1400। जैसे ही मुसलमान खैबर के इलाके में दाखिल हुए ना, तो ये जो यहूदी थे ना खैबर वाले, ये सब भाग गए, आए नहीं सामने, सारे के सारे किले में अपने आप को महसूर कर लिया। फिर जब किले में महसूर किया तो थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, बहुत मामूली से लड़ाई हुई, और बड़ी आसानी के साथ खैबर फतह हो गया। और बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक किले को फतह करने वाले मौलाए कायनात है, जिन्होंने अपने दोनों दस्ते मुबारक से खैबर के किले को उठाया था और उखैर कर फेंक दिया था, हज़रत सैयदना अली शेर खुदा ने। यही वो खैबर का वाक़या है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के हाथों पर खैबर को जो फतह किया, बड़ा इजीली हो गया, बड़ा आसानी से हो गया। इसी बात को खालिक कायनात क्या कहता है? मगानिमा कसीरा, यानी कसीर तुम्हें गनीमत, माले गनीमत हासिल होगा। आपके जहनों में एक सवाल आएगा, ये जो माले गनीमत है, इसको इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? कसीर। कसीर कहते हैं ढेर सारे को, बहुत सारा। जनाब ये कसीर है, ढेर सारा है, बहुत सारा है। अब ये जो है मिलेगा, ये है क्या? है तो माल ना, दुनिया की चीज है, लेकिन कुरान इसे कहता है मगानिमा कसीरा, ढेर सारा मिलेगा तुम्हें। अब यहां कुरान कसीरा कहता है, लेकिन एक और मकाम कुरान का पढ़िए, मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील, फरमाया दुनिया का साजो सामान थोड़ा है। जरा गौर करें, दुनिया का साजो सामान रब कहता है थोड़ा है, और सहाबा किराम के लिए जो माले गनीमत हासिल होगा रब कहता है कसीरा। एक तरफ कलील है और एक तरफ कसीर है। अब जाहिर बात है माले गनीमत में जो माल मिला, दुनिया तो इससे भी बड़ी है, उसको कुरान कहता है कलील, लेकिन इसको कहता है कसीर, क्योंकि ये रब की बारगाह से इनाम था, ये रब की बारगाह से इनाम था। यानी जो कुर्बानी साहबा किराम ने पेश की, अल्लाह इन्हें दुनिया में उसका फल दे रहा है। याद रखिएगा, आखिरत में तो फल मिलेगा, लेकिन हम जब अच्छे अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उसका फल दुनिया में भी देता है। इसीलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा बड़ा खतरनाक हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया। हमारी जबान पर क्या निकलता है? यार कोई नेकी बीच में आ गई, ये हम कहते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम अच्छे अमल करते हैं, अगरचे इसका ताल्लुक आखिरत से है, ये बात ध्यान में रखेगा, इसका ताल्लुक आखिरत से है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, रब दुनिया में भी उसके फल दे देता है। लेकिन अगर काफिर अच्छे अमल करता है, चूंकि आखिरत में इनका तो कोई हिस्सा ही नहीं, इन्हें तो कुछ नहीं मिलना, अल्लाह इन्हें दुनिया में ही उसका रिटर्न अता कर देता है। तो यहां मगानी में कसीरा कहा, जबकि दुनिया का सादो सामान को कलील का। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूं। सिफर कहते हैं ना किसी के मुतालिक, हम कहते हैं जनाब पहले पैसे वाला था, अब हो गया सिफर, अब कुछ भी नहीं है, खाली हो गया। अब देखिए सिफर कहते किसको है? सिफर का मतलब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही सिफर अगर आप अलिफ के बाद लगा दें 10 हो गया, फिर मजीद लगा दें तो 100 हो गया। यानी पता ये चला एक वक्त था सिफर की कोई वैल्यू नहीं थी। जब वैल्यू नहीं थी तो रब ने क्या फरमाया? मता और दुनिया कलील। और जब माले गनीमत की बात आई, रब के इनाम की बात आई, तो फरमाया अब ये जीरो नहीं है, ये एक के बाद वाला जीरो है। अब ये ना इसको हल्का मत लो। तो याद रखिएगा, माल की दो हैसियतें हो गई,
ایک ایسا مال ہے جس کو قرآن کہتا ہے قلیل، لیکن جب آپ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اب قلیل نہیں ہے بلکہ اب کیا ہو گیا؟ کثیر ہو گیا۔ اسی لیے خالق کائنات نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اے میرے محبوب کے صحابہ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، ان قریب ہم تمہیں کثیر مال غنیمت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا میں میری بارگاہ سے تمہارے لیے انعام ہے، جن جذبات کا تم نے اظہار کیا یہ اس کا عوض اور ریٹرن ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 20، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فأجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ وعدکم، وعدہ فرمایا تم سے اللہ مغانمہ، غنیمتوں کا، کثیرتاً بہت سی، ڈھیر ساری، تأخذونہا تم حاصل کرو گے ان کو، فأجلا پس جلدی دے دی، لکم تمہیں، ہذہ یہ، اور کفا روک دیا ہے، ایدیا ہاتھوں کو، الناس لوگوں کے، انکم تم سے، اور لتکونا تاکہ ہو جائے، آیتن نشانی، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، اور یہدیکم تمہیں دکھائے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ تفسیری ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے وقت پر حاصل کرو گے، پس تمہیں یہ صلح جلدی دے دی ہے اور روک دیا ہے اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، تاکہ ہو جائے ہماری نصرت کی نشانی ایمان والوں کے لیے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی خالق کائنات نے اسی بات کو بیان کیا، فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم تمہیں کثیر مال غنیمت دیں گے، اور وہ بھی ہم کیسے دیں گے؟ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، ایسا نہیں 10 سال کے بعد ملے گی، فرمایا فوراً۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ خیبر 6 ماہ میں ہو گیا، صلح حدیبیہ کے بعد، بیعت رضوان کے بعد۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اس کا تعلق ایک واقعے سے ہے۔ جب یہ غزوہ خیبر کے لیے نکلے نا تو مدینہ طیبہ کے اطراف میں 2 قبیلے تھے، ایک بنی اسد اور ایک بنی غطفان، اور یہ خیبر والوں کے ساتھی تھے، حلیف تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان تو سارے چلے گئے مدینے سے، اب ہم مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کا جو مال ہے نا وہ لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا پتہ ہے؟ انہوں نے ارادہ تو کر لیا چلو مدینے پر حملہ کرتے، اللہ نے ان کے دلوں پر خوف بٹھا دیا۔ اللہ صحابہ کرام کو ارشاد فرماتا ہے تم چلے گئے تھے، اگر یہ قبیلے والے آتے نا تو نقصان پہنچاتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے ان کے دلوں پر خوف بٹھا دیا۔ تو خالق کائنات کہتا ہے وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، یہ آت بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ آپ کا دشمن ہے، چاہتا ہے میں مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ اس کے دل میں آپ کا خوف بٹھا دیتا ہے، ڈر بٹھا دیتا ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جبکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا دل سب سے زیادہ موم تھا، نرم تھا، لیکن حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر میرا کوئی دشمن ہونا تو اللہ تعالیٰ 1 مہینے کی مسافت پر بھی میرے دشمن کے دل میں میرا خوف بٹھا دیتا ہے۔ یہ غیبی امداد ہے، اور اسی غیبی امداد کا تذکرہ آیت کریمہ کے اس حصے میں بیان ہوا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ۔ پھر مزید فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کے لیے نشانی ہے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو
सीधे रास्ते पर गामजन कर दिया है। ये सिरात मुस्तकीम में है। सूरह फतह आयत नंबर 21, व उखरा लम तक़दिरु अलैहा कद अहाता अल्लाहु बिहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। व और उखरा मजीद भी, लम तक़दिरु तुम कुदरत नहीं रखते थे, अलैहा उन पर, कद बेशक, अहाता घेर रखा है, अल्लाह अल्लाह ने, बिहा उन्हें, व और, काना है अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज, कदीरन कादिर है। इस आयत करीमा में खालिक कायनात ने मजीद फुतुहात का तस्करा किया है और इसमें इशारा है फारस और रूम के हवाले से, क्योंकि उस वक्त जब सुलह हुदैबिया हुआ और बैत रिजवान हुआ, ज़ाहिर बात है ज़ाहिरी एतबार से तो इतनी ताकत थी नहीं मुसलमानों में कि वो फारस और रूम से लड़े। ये सुपर पावर ताकतें कहला रही थी। तो खालिक कायनात ने फरमाया, सुनो ए सहाबियों, हम और फुतुहात देंगे, व उखरा लम तक़दिरु अलैहा, मजीद फुतुहात मिलेंगी, जबकि अभी तुम्हें यह महसूस होता होगा कि तुम में वो ताकत नहीं कि तुम उनसे लड़ सको, तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा। लेकिन रब क्या कहता है, कद अहाता अल्लाहु बिहा, लेकिन अल्लाह ने सबको घेरे में लिया हुआ है और अल्लाह मदद करेगा। और फिर दौरे उम्र फारूक में ऐसी मदद हुई कि फारस भी फतह हुआ और रूम भी फतह हो गया। फिर खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा, बेशक मेरा रब जो अल्लाह है हर शे पर कुदरत रखता है। ये 5 आयतें थी जिसकी मैंने वदात कर दी सूरह फतह की। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो